Hello everyone, welcome to our YouTube channel, that is Commerce by Anup sir. In today's video, we are going to discuss the topic performance appraisal from the subject HRM, Human Resource Management. Performance appraisal, we have that word many times in our routine life. Performance appraisal means to raise the performance. Appraisal means to raise. Appraisal means to raise the performance of the employees, means how we can improve the performance of the employees. So performance appraisal is the process to assess the performance of individual against the benchmark. मीन्स एक जॉब के लिए जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उस स्टैंडर्ड के अंदर वो इंडिविजुअल कितना काम कर पा रहा है या किस लेवल तक वो जा रहा है उसको चेक करने के लिए जो हम करते हैं दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना अगेंस्ट द बेंचमार्क एंड देन उस परफॉर्मेंस को मैनेज करना कि हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज and what are the reason behind these drawbacks in the performance of employees and how we can improve the performance. What are the various methods to improvement the performance of the employees. So performance appraisal to measure the performance of the employees. It includes three items. Yeah, mainly it includes three elements. क्या हो गया इस definition से पता लग रहा है. First is identification, second is measurement, and third is management. Management means identification means benchmark कि हम वो लेवल मेजर करेंगे, वो लेवल हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अगेंस्ट हमने उसकी परफॉर्मेंस मेजर करी है. मीन्स व्हाट आर द वेरियस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर जॉब. मीन्स एक कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको दिन में वो 100 यूनिट हमें बना के दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर आइटम का इतना आउटपुट हो जाना चाहिए. मेजरमेंट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एन एम्प्लॉय कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, किस बेस पे हम उसकी जॉब को जो है मेजर करने वाले हैं, किस बेस पे उसकी जॉब को जो है हम कैलकुलेट करने वाले. देन मेजरमेंट, how we will measure that performance, what are the methods of the performance appraisal, how we will measure the performance of employees. There are various type of methods for the measurement which will be discussed in the next coming videos or in the coming slides. And third one is management, means how we will manage these two. First you have identified the performance, then you have measured the performance. What is the difference between your identification and your measurement? Means identification is expectation and measurement is the result. So what is the difference between expectation and the result? How we will manage this? Clear? So it includes three items: identification, measure and management. Means if the measurement is equal to the identification, is result is equal to the expectations, we can give them promotion, we can give them bonus, we can appreciate their performance, we can increase the salary, we can give them some extra benefits. So and if the result is less than the expectation, we can give them training, we can prepare them for the future, we can plan a change in their job if the expectations are less than the result. And if expectations are more than the result, we can also use the same methods which we have used in the expectation is equal to result. Means we can make a development program for them, we can motivate them, we can give them chance to show their creativity, we can give them chance to show their performance to the extended level. So performance appraisal includes three parts: identification, measurement and management. Clear हुआ? Performance management to measure the performance of the employees. Now why we need the performance management या performance appraisal? क्यों जरूरत पड़ती है? There are four objectives that company measure the performance of the employees. First is development use,
second is administrative use, third is organizational maintenance, and fourth is documentation. First is development use, means we go for the performance appraisal for the development use, to identify the training needs of the employees, to identify the performance feedback, to determining the transfer and the other प्रमोशन इन द कंपनीज. मीन्स डेवलपमेंट यूज़ कि हम जो परफॉर्मेंस हमने मेज़र की है उसको हम एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे, उसकी बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है डिज़ाइन कर सकते हैं. इसके अलावा हमें ऑर्गेनाइजेशन की और इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ पता चलती है कि कैसे जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़, ईयर एंड में या कंपनी को जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको ये डिटरमाइन करने में यूज़ हो सकता है कि किसका प्रमोशन करना है, किसी की सैलरी बढ़ानी है, किसी को कितना हमने बोनस देना है, कितना जो है हमने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, कितनों को हमने ले ऑफ करना है, या नए एम्प्लॉयज़ को हमने हायर करना है या नहीं करना. दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़. मीन्स ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है. Means which are to be promoted, which are to be demoted, which are to be transferred, which are to be terminated, and what else we require in our organization. So that is for administrative use. Third is organizational maintenance. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ती है. HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. मीन्स अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस सही है फ्यूचर के हिसाब से तो हम उन्हीं के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. बट अगर परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस है एक्सपेक्टेड रिजल्ट में और जो आपको फाइनल रिजल्ट मिले हैं उनमें, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए, उनकी क्या ट्रेनिंग हमने करवानी है, क्या प्रोग्राम हमने उनके लिए डिजाइन करना है. तो HR सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर वी नीड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एंड लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन मीन्स फ्यूचर रिसर्च के लिए, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन में HR का जो सिस्टम है, HR डिसीजंस को जो है फुलफिल करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट कुछ कंपनीज में या कई बार लीगल बाउंडेशंस होती है, उन सब के लिए हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है. तो ब्रॉडली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: डेवलपमेंट यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. क्लियर कि डेवलपमेंट मीन्स एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इसके लिए. एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ भी किसका प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको जो है हमने टर्मिनेट करना है, कितने नए एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं. ऑर्गेनाइजेशनल भी यही कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर प्लानिंग है उसके साथ हम उसको मैच कर सकें. डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर के लिए हमें ये पता चलता रहे कि हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है. इसके अलावा HR डिपार्टमेंट अपने प्लान बनाने के लिए उस डाटा को फ्यूचर में यूज़ करता है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एंड उसके बाद आता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ ए कंटिन्यूस सिस्टम, लगातार जो है चलता रहता है. जैसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस, लगातार जो है ये एक सर्कल में चलता रहता है. तो इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक प्रोसेस. मीन्स हर कंपनीज एनुअली या 6 मंथ और 3 मंथ्स या जो है वो अपना अप्रेजल सिस्टम जो है वो करती हैं. नॉर्मली एनुअली चलता है कि आप अप्रेजल सिस्टम जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो लगातार चलता रहता है. एंड इट इज़ द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. हम ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस किस लेवल पे जा रही है. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव assessment of the employee's performance. And performance appraisal is not job evaluation. Job evaluation is the evaluation of the job, means monetary value of the job, but performance appraisal is the evaluation of the employee's performance. कि employee जो है किस तरीके से जो है काम कर रहा है ये उसके ऊपर रहता है. And performance appraisal can be both formal and informal. फॉर्मल तरीके से भी होता है और इनफॉर्मल तरीके से. फॉर्मल मीन्स कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपके कलीग्स हैं, वो आपके बारे में एक सब्जेक्टिव जो है व्यू देते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में.
फॉर्मल मीन्स जिसमें स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डिजाइन किया होता है कि किस तरह से हमने प्रोग्राम करना है या किस तरह से हमने उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक प्रोग्राम ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एंड एम्प्लॉइज़ को भी पता होता है कि उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। कई बार आपके रिलेटिव्स या जो लोग जॉब में होते हैं वो लोग वेट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले महीने का, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस के ऊपर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, खासतौर पे प्राइवेट कंपनीज में। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कैसे? एम्प्लॉयज़ को तो ये पता चल जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस किस लेवल की है, जो उनको टारगेट दिया गया था, जो उनको जॉब के बारे में बताया गया था, उसको वो अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। और ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं किस लेवल तक के हैं, हमें उनको क्या सिखाने की ज़रूरत है, क्या उन्हें और करवाने की ज़रूरत है। तो क्लियर हुआ, परफॉर्मेंस मैनेज अप्रेजल जो है क्या? सिर्फ ये चेक करना कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस हमारे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये HRM का भी, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके नेट के हिसाब से भी। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए लेते हैं, कैसे जो है आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो देयर आर 7 steps in the process of appraisal. First is defining the objective of performance appraisal. Second, establish the job expectations. Third is design an appropriate program. Fourth is appraise the performance. Then performance interview. Sixth one is archive the appraisal data. And seventh is use the appraisal data and for appropriate ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के तरीके से जो है सही तरीके से उसको यूज़ करेंगे। कैसे जो हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो क्लियर हुआ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और प्रोसेस क्या है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अप्रेजल। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द performance appraisal. In the management, the first step of every process is to defining the objective. So in the same way, we have to decide that why we are going to perform the performance appraisal of the employees. Is there any training motivation? Is there any transfer motivation? Is there any promotion motivation or any other objectives? मीन्स वाई वी आर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्यों मेजर कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको क्लैरिटी जो है उसके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है हम आगे फर्दर चलते हैं। तो मीन्स आपका जो है ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का भी हो सकता है, डेवलपमेंट का भी हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट का भी हो सकता है, और इसके साथ साथ आपकी ट्रांसफ़र या किसी और चीज़ का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या सिंपली हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा काम या हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं कम है या ज़्यादा हैं, उन्हें हमें और एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत है या कुछ एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करने की जो है ज़रूरत है। तो फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन हो गए तो आप जो है आगे उसी तरीके से चल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज़ एस्टेब्लिश द जॉब expectation. Establish the job expectation. This identification कि हम किसी जॉब को क्या चाहते हैं, what we want from a employee, what we want from a employee मीन्स हमें उसको क्लियर करना चाहिए कि हम उसकी जॉब से क्या चाहते हैं, कि what is the goal of a job, what are the objectives of a job. मीन्स क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ए एम्प्लॉयज़ इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, नॉट इन द लॉन्ग रन, नॉट इन द शॉर्ट रन। जितने टाइम के अंदर आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी है उसके अंदर कि हम उससे क्या चाहते हैं। तो आपकी जॉब एक्सपेक्टेशंस जो हैं क्लियर होने चाहिए, बिकॉज देयर आर जॉब एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट जॉब्स एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। एक CEO है, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो ऑब्वियसली बात है अलग ही रहेंगी। तो हमें हर जॉब की एक्सपेक्टेशंस जो हैं क्लियर करनी चाहिए कि हमारी जॉब एक्सपेक्टेशंस जो हैं क्या है। ये हमारा हेल्प करेगा आगे जाने में।
देन डिजाइन ए अप्रेजल प्रोग्राम, एक अप्रेजल प्रोग्राम डिजाइन करेंगे या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक अप्रेजल सिस्टम जो है डिजाइन करेंगे। जैसे हमने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने में क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हमने ये किया था कि ट्रेनीज कौन होंगे, ट्रेनर कौन होंगे, क्या सिखाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। वही सेम किसी भी प्रोग्राम के डिजाइन में यही तो आता है कि कौन रहेगा एम्प्लॉयज, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस हमने मेजर करनी है, हु विल मेजर द परफॉर्मेंस, हाउ विल मेजर द परफॉर्मेंस, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू मेजर द परफॉर्मेंस, देन वी विल डिसाइड ए प्रोग्राम कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एंड हाउ वी विल मेजर द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम या फाइनल इवोल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल है या नहीं। तो डिजाइन ए अप्रेजल प्रोग्राम मीन्स टू whom the performance will be measured, who will measure the performance, how will measure the performance, when the performance will be measured, and what are the measurement, what means what are the expectation। क्लियर हुआ ये तीनों स्टेप कि पहले हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमें एम्प्लॉय से चाहिए क्या, उसके बाद ये देखेंगे जो चाहिए उसको हम करेंगे कैसे, हाउ वी विल मेजर दैट। तो डिजाइन ए अप्रेजल प्रोग्राम, एक अप्रेजल प्रोग्राम जो है हम डिजाइन करेंगे, एंड देन वी विल अप्रेज द परफॉर्मेंस। अप्रेज मीन्स वी विल मेजर करना शुरू कर देंगे, अप्रेज द परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को जो है अप्रेज करना शुरू कर देंगे। तो अप्रेजल के लिए जो है, जब मेजर करने के लिए हम नॉर्मली 4 चीजें देखते हैं, ठीक है। फॉर अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस वी विल गो विद 4 थिंग्स। क्या क्या होंगी वो 4 चीजें यहाँ पे इससे, ठीक है, क्या क्या होंगी, इंडिविजुअल ट्रेट, बिहेवियरल ट्रेट, नॉलेज, इंडिविजुअल बिहेवियर, नॉलेज, एंड लास्ट इज रिजल्ट अचीव्ड। मीन्स किसी की परफॉर्मेंस में हम यही चीज़ देखेंगे, जब हम किसी की परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं तो यही चीज़ देखते हैं, इंडिविजुअल ट्रेट, बिहेवियर ट्रेट, नॉलेज ट्रेट एंड रिजल्ट अचीव्ड। मीन्स कि आपकी नॉलेज क्या है, आपके इंडिविजुअल ट्रेट्स मीन्स आपके इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी जजमेंट कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आपका एटीट्यूड जो है उस जॉब को लेके कैसा है, दैट इज इंडिविजुअल ट्रेट। उसके बाद आता है बिहेवियर ट्रेट मीन्स हाउ your interpersonal relations with the others, how are you the interpersonal relation with the others, how we talk to our colleagues, how we talk to our juniors and seniors and all these, that is behavior trait। knowledge about your job, आपकी नॉलेज, आपकी अपडेशन को चेक किया जाता है कि आर यू अपडेटेड अबाउट द जॉब और द नॉट। देन रिजल्ट अचीव। फिर हम ये देखते हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है आपने परफॉर्मेंस जो है की हो, ठीक है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी रह गई हो सकता है आपकी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है किसी और वजह से आप काम ना कर पाए हो, या कई बार क्या होता है हम जानबूझ के भी काम नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, सब कुछ आता होता है फिर भी जो है आप काम नहीं कर रहे होते। तो फाइनली हम रिजल्ट अचीव्ड मीन्स ये सारी चीज़ें हैं वो अलग बात है, आपने इन सारी चीज़ों के साथ कुछ किया भी है या नहीं, मीन्स दैट इज रिजल्ट अचीव, कि आपने रिजल्ट जो है अचीव किया है या नहीं। तो दैट इज अप्रेज द परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करते हैं। देन परफॉर्मेंस इंटरव्यू, दिस इज नॉर्मली द लास्ट स्टेप, हम मान के चलते हैं, उसके बाद सब ऑफिशियल होता है, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेप, परफॉर्मेंस इंटरव्यू। वी विल चेक द performance of the employees in interview, means where the employees and the rater, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ और जिसने रेट किया है उनका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय को ये पता लगता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ स्टैंड करता है, या वो उस जगह पे कहाँ स्टैंड करता है, किस लेवल तक जो है वो वहाँ पे पहुँच पाया है। मीन्स दिस इज द फेस टू फेस इंटरव्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द रेटर और द पर्सन हु इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, उनके बीच में जो है
इंटरव्यू होता है, उसकी इंटरव्यू जो है आप उसका करते हैं, आप डिस्कस करते हैं कि what is your expected behavior, how we can improve the behavior, why your performance is less than the expected, and what do you want from the management in improving the performance. तो दैट इज परफॉर्मेंस इंटरव्यू. परफॉर्मेंस इंटरव्यू किया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉय को पता लगता है कि वो किस लेवल पे जो है वहाँ पे खड़ा है, कहाँ तक वो पहुँच पाया है. देन अचीविंग द अर्कीव द अप्रेजल डाटा मीन्स जो हमारे पास डाटा आया है सारा, उस डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं या उस डाटा को हम HR डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको अपने डाटा में स्टोर करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सही तरीके से जो है उस डाटा को वो स्टोर करता है. तो दिस इज अचीविंग द अप्रेजल डाटा. एंड लास्ट स्टेप, यूज दिस डाटा फॉर द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ लेके चले थे उस डाटा को हम उसके लिए यूज़ करते हैं. मीन्स उस डाटा के बेस के ऊपर आपका प्रमोशन होता है, उस डाटा के बेस के ऊपर आपका ट्रांसफ़र होता है, उस डाटा के बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है या नहीं. उस डाटा के बेस पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या रहेगा, कितने लोगों को सैलरी बढ़ानी है, कितने नए लोग चाहिए, कितने नए लोगों को हम हमारी कंपनी में जो है एक्स्ट्रा हैं जो काम कर रहे हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि परफॉर्मेंस जो है किस तरीके से मेज़र की जा सकती है, कैसे हम उसको मेज़र करते हैं. क्लियर हुआ? दिस इज द 7 स्टेप्स. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेकंड एस्टेब्लिश द जॉब एक्सपेक्टेशन, थर्ड डिजाइन ए अप्रेजल पर प्रोग्राम, फोर्थ एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस, then performance interview, archive the appraisal data, and last one is use this appraisal data for the appropriate objective. Clear? कि what is performance appraisal? To raise the performance of the employees for the organizational objectives, कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, इसके लिए हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जो है रेज करते हैं, उसको अप्रेज करते हैं. Appraise means to raise, so that we can raise the performance, we can improve the performance of the employees. ये तो है performance appraisal जो है क्या होता है. And now the remaining part that is most important, that are the methods of performance appraisal. We will discuss that part in the next video. Until now, you can revise this chapter and you can go through this video again. If you have any queries related to this topic, you can write in the comment box. We will get back to you. Thank you.